political scientist and historian. He is a professor of political science at Stockholm University. He is also a visiting professor at Government College University, Lahore, and an honorary senior fellow, Institute of South Asian Studies at National University of Singapore. Also with us, we have Urvashi Bhutalia, who is a co-founder of Kali for Women. She is an independent researcher and writer concerned mostly with issues related to gender. We have with us Sudhina Kulkarni. Sudhindra Kulkarni. Kulkarni is chairman of the Observer Research Foundation, a non-partisan public policy think tank in Mumbai. We have with us Kishwar Nahid, who is one of the best-known feminist poets of Pakistan. She was the Director General of Pakistan National Council of Art and is currently on the Board of Directors of National Rural Support Program. We have with us Noman Naqvi. Dr. Noman Naqvi is the Dean of the School of Arts, Humanities and Social Sciences and Director of the Liberal Core Curriculum at Habib University. We would now request the moderator to begin the session. Good morning, everyone. It's my very great pleasure to welcome you to this panel discussion on drawing borders in blood. We have a very distinguished panel with us to share their views about the borders which were drawn in 1947 and the consequences of such borders. We also have an extraordinary story which I don't think people who are here will ever forget, because the story of this lady, Harbhajan Kaur, Shehnaz Begum, and her 5 Pakistani children, we shall also present to you, but that would be towards the end of our session. Let me put, I think the description of this panel, Drawing Borders in Blood, is very graphic. In that, in a matter of 5 months, a subcontinent of the size of, with a population of almost 400 million, was partitioned, and 2 provinces were partitioned. And in these 5 months, more than 1 million Hindus, Muslim, and Sikhs were killed. The greatest, may I underline, the greatest migration in history took place in the subcontinent as a result of this bloody partition. 15 to 18 million people are estimated to have crossed the border, mostly to save their lives. And just to illustrate, at that time, if we now bring in the suffering of Punjab, which I think is the one which bore the brunt of the partition violence, it had only a population of 33.9 million, of which anywhere between 500,000 to 800,000 Hindus, Muslims, and Sikhs were killed. 90,000 women were abducted. Many of them were never found. Those who were found were not easily accepted by their families. And we have Urvashi Bhutalia to tell their story. Let me begin by inviting Noman Naqvi Saab, who has a take on the colonial state, to present his views. Thank you, Dr. Saab. I just want to make 2 points. I'm eager to hear the stories just as the rest of the population.
The first point having to do with the title of this panel, Drawing Borders in Blood. I think that should be taken quite literally, both because of what you're telling us, but also because the partition was a direct result of the apartheid nature of the colonial state. This is something that we don't talk about much. We don't even hear this phrase when we talk about the British state very much. Apartheid is not unique to South Africa or to Israel. It was the general form of the colonial state, just as much here in South Asia, the modern colonial state. So this is very important to understand if we are to understand everything that followed. The first being that the modern state had two forms. One was the nation state, which was in Europe, and the apartheid state, which was in the colonies of Europe. And apartheid, of course, is based on the modern doctrine of race. And the racial division in apartheid, in all apartheid, is not just between Goras and Kalas, yes, but then between the Kalas. So this racial distinction, the borders that were drawn even before the partition by the colonial state, yes, between the population, this is historically unprecedented. It is a modern phenomenon. The apartheid state is a modern state. So that's the first point I want to make. The other point that I want to make is having to do with this historical trauma that we have all suffered. One of the recent themes in the literature on historical memory is that of unclaimed experience. Yes, unclaimed experience. This is what happens as a result of traumatic experience, is that of trauma, is that you have this experience which is unavailable to you for conceptualization, for narration even, yes. So directly both the colonial state as well as this experience of partition, precisely because of the categories of the colonial state as well, has been unavailable to us for conceptualization, and this has had a very dramatic effect on our traditions. आज इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी these monstrous forms of nationalism that we see are in fact a direct result of this traumatic experience and the lack of conceptualization of that experience. So that's all I'd like to say. Yeah? Thanks. I think this is a very incisive observation in that apartheid was then transferred into the division of India, which is an apartheid of a different type, but it's based on the same principle that some classes, some races can't live together, and then some people of different religions can't also coexist. So it's a continuation of that. And that is maybe the reason they did it in such a great hurry, without really taking into account its consequences. Thank you. आवाज नहीं आ रही? अच्छा आप यार ये मेरे साथ हमेशा हो जाता है, मैं इतना एक्साइट हो जाता हूँ. अच्छा उर्दू में बोलें तो ज़्यादा करीब रहेंगे लोगों को, क्योंकि तकसीम भी उर्दू के हवाले से एक तरह हुई. अच्छा चलें, ठीक है, ये मुझे ऐसे दे दें. हाँ, तो इसके बाद मैं दावत दूंगा हमारी that's better. उर्दू लिटरेचर के एक बहुत बड़े पर्सनैलिटी को, किश्वर नाहिर साहिबा, जो ख़ुद पार्टीशन की विटनेस हैं. तो आज इस पैनल में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जिसने पार्टीशन अपनी आँखों के सामने होते देखी. तो आप बोलिए जी. शुक्रिया डॉक्टर साहब. मैंने सिर्फ पार्टीशन नहीं देखी. पहले मैं एक बात करूंगी जो बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के इस हवाले से, और शीमा और मैं हम दोनों जानते हैं कि आज पाकिस्तानी औरतों का दिन है. मैं चाहूँगी वी शुड क्लैप फॉर द पाकिस्तानी वुमेन ऑफ पाकिस्तान. वो क्यों है वो बाद में बताऊँगी. एक बात जो मैं बताना चाहती हूँ इश्तियाक साहब को के साथ साथ सबको, ये ज़माना है 1943 का. कायदे आज़म ने अपील की थी कि मुस्लिम लीग को चंदा चाहिए. उस चंदे को देने के लिए दो ग्रुपों की मैं आपसे बात करूंगी.
एक बच्चे जो 5 साल से 13 साल की उम्र के थे और उन्होंने चवन्नी अठन्नी जमा करके अपनी जो उन्हें मिलती थी वो भेजी थी, और उसकी कापियाँ, उन ख़तों की कापियाँ और उनके रसीद की कापियाँ कायद आज़म ने उन सबको रिसीव किया। वो किताबी सूरत में हमारे पास मौजूद हैं, बच्चों के खतूत कायद आज़म के नाम। एक तो ये है। दूसरी बात जो मैं बताऊंगी, जो मैं अपनी अम्मा की उंगली पकड़ के जलसों में जाती थी मुस्लिम लीग के, सारी औरतों ने काले बुर्क़े पहने होते थे और जलसे में इकट्ठी होती थी, और उनसे कहा गया था कि चंदा इकट्ठा करो, तो औरतों ने ये सिलसिला जी अच्छा ये सारों के साथ ही हो रहा है। अब ठीक है। तो औरतों ने ये किया था कि दोपहर को आटा गूंथते हुए और शाम को आटा गूंथते हुए एक मुट्ठी आटा निकाल के अलग रख लेती थी, और वो आटा इकट्ठी करके हम जाके मुस्लिम लीग के दफ्तर में जमा करा के आते थे, और शाम को वो आटा बेच के मुस्लिम लीग के फंड्स में पैसे जमा करा जाता थे। अच्छा, अब मसला आता है कि क़याम पाकिस्तान का ऐलान हुआ, और मेरे अब्बा मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी थे बुलंदशहर के। उन्होंने मिठाई तकसीम की, 8 बजे मिठाई तकसीम की, और 10 बजे उनको पकड़ लिया गया कि मुस्लिम लीग के फंड्स के लिए काम करते हैं। जब मुस्लिम लीग के फंड्स के लिए काम करने के लिए अब्बा को जेल में डाल दिया गया, तो मेरी ज़िंदगी में जेल का हवाला उस वक्त से शुरू होता है। बचपन मेरा जेल के हवाले से शुरू होता है, और जेल का हवाला मैंने अपने मियाँ के हवाले से भी देखा, अपने हवाले से भी देखा, भुट्टो साहब के हवाले से भी देखा, और बेनज़ीर के हवाले से भी देखा, और मैंने बहुत हवाले देखे। वो क्या क्या देखे वो बाद में बता दूंगी आप। बड़ी मेहरबानी। And then, of course, this is an occasion for me to give my compliments to Urvashi Batalia, who broke new grounds on partition studies, because up until then, historians had focused mainly on high politics. And from both sides, the national narrative had developed, whereby one could run down Gandhi and Nehru if one wanted to, or run down Jinnah if that was your preference. But then comes 1997, and that's the 50 years of the partition. It's very important to underline this, that the enormity of the partition, the barbarity of the partition was recorded by our fictional writers very well, by our poets. The greatest novel, the short stories, and some of the most moving poetry is on the partition. But scholars were hesitant to enter the partition as it affected the people. The reason was because as a historian you can always access archives kept by the libraries, and neither the government of Pakistan nor the government of India, and most certainly not the government of Great Britain, was interested in the horrors of partition being brought forth. Then, of course, we had this book by two journalists who went around and wrote this book about the partition. And then finally 1997 comes, and Indian feminists take up this cause. 3 of them that I know of: Urvashi Batalia. अब माइक को दूर रख के बोल रहे हैं। Acha. Ritu Menon and Kamala Bhasin. But they wrote separate books. Urvashi's book was outstanding in the sense that it had a feminist perspective, but it also had a very, very personal dimension. And then, of course, what they had done was change the whole
agenda of how to research partition. That is oral history. So, Urvashi, please, how you remember Yeah. your research, the consequences, and then you had friends in Lahore, I believe, who helped you a lot. So, Yeah. please. शुक्रिया इकबाल साहब, इश्तियाक साहब, सॉरी। ये टेक्नोलॉजी का बहुत मसला है। अगर आपको सुन नहीं रहा है या मैं इस तरफ हो जाऊँ उस तरफ हो जाऊँ तो प्लीज़ अपना हाथ खड़ा कर दीजिए, मुझे समझ आ जाएगी और मैं माइक के सामने हो जाऊँगी। असल में ये कहा जाता है टू सिंगर्स एंड ऑल दैट यू हैव टू किस द माइक, दैट्स द ओनली वे यू कैन एक्चुअली बी हर्ड। सो आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, बट आई विल स्पीक इनटू इट। सो मैं ये आपकी जो बात आपने कही कि एक नेशन स्टेट और एक अपार्थाइड स्टेट, उसके साथ अपनी बात थोड़ी सी लिंक करना चाहूँगी। मेरी पैदाइश पार्टीशन के 5 साल बाद हुई, लेकिन मेरी फैमिली जो है, जैसे बहुत सी पंजाबी फैमिलीज़ हैं, उनकी एक पार्टीशन की हिस्ट्री थी। और सारी उम्र बचपन में मैं वो कहानियाँ सुनती आई, लेकिन उन पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मैंने, क्योंकि हम समझते हैं कि जब नेशन स्टेट बनता है या उस नेशन स्टेट का जो भी उसकी शक्ल होती है, जैसे आपने अपार्थाइड स्टेट का जिक्र किया, तो वो हम लोगों से उसका कुछ लेना देना नहीं होता है, मतलब आम लोगों से उसका कुछ लेना देना नहीं होता है। लेकिन जैसे कि मेरी समझ में आया कुछ काफ़ी देर बाद कि ये जिसको हम हिस्ट्री कहते हैं, देयर आर वेज इन विच इट प्लेज आउट इन द लाइव्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, एंड आम लोग हैं, आवाम है जो इस हिस्ट्री को जीती है, जिसको झेलती है, अपने ऊपर लेती है, और जिसका लंबा असर जो होता है उनकी ज़िंदगी में दिखता है। और अपनी हिस्ट्री समझने में हम इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं करते हैं। तो मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही था। मेरी माँ हमें कहानियाँ सुनाती थी, मेरे वालिद साहब हमें कहानियाँ सुनाते थे, वो ट्रिब्यून में काम करते थे मेरे फादर, और आखिरी दिन 14 अगस्त को उन्होंने आखिरी अखबार छापी और फिर वो ट्रक लेके बॉर्डर क्रॉस करके अमृतसर में आ गए। मेरी माँ के भाई और उनकी मदर यहाँ पर रह गईं, लाहौर में रह गईं, और उनके भाई बाद में मुसलमान हो गए, और 40 साल किसी ने उनसे बात नहीं की, और उनकी कहानियाँ मैं हमेशा सुनती थी। और जब मेरा इंटरेस्ट हुआ पार्टीशन में, और वो इत्तेफाक से एक फ़िल्म पे मैंने काम किया था जिसमें मुझे ज़िम्मेवारी दी गई थी कि लोगों को जाके इंटरव्यू करो और देखो कि उनकी क्या यादाश्त है उस समय की। तो जैसे जैसे मैं लोगों की बातें सुनने लगी तो मेरे जहन में ये घुसने लगा कि अगर ये इतना बड़ा हादसा हुआ और हम लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया है, तो हम कैसे समझ सकते हैं अपनी हिस्ट्री को, और कैसे समझ सकते हैं कि हमारे आसपास जो हिंदुओं में, मुसलमानों में, जो आम लोगों में झगड़े होते हैं वो कहाँ से आए, क्यों आए, कैसे हुए, और आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला कदम जो मैंने लिया वो कि मैं किसी न किसी तरह से वीज़ा लगवा के लाहौर आ गई अपने मामू को ढूंढने के लिए, और वो मेरे नाना के घर में ही रहते थे। और उनसे मैं आके मिली, रात के 10 बजे उनका दरवाज़ा खटखटाया और बोला कि मैं उधर से आई हूँ परली तरफ से, और मैं आपकी बहन की बेटी हूँ। और वो जो मुलाकात हुई उनके साथ और जो बातें हुई उनके साथ, उससे मुझे ये समझ में आया और मैं समझने लगी कि किस तरह से हिस्ट्री आम लोगों की ज़िंदगी पे असर डाल सकती है, और कैसे हम ये जो तजर्बा है इसको क्या हम हिस्ट्री से अलग कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है। तो वो करते कराते मैं आगे बढ़ने लगी, लेकिन क्योंकि मैं एक हिस्टोरियन नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक राइटर हूँ और एक पब्लिशर हूँ, और मेरा ख़ास इंटरेस्ट ख़वातीन के इतिहास में है, तो मैं उसको कोई एक तरीके से उस रिसर्च को नहीं करने लगी। लेकिन जहाँ भी मुझे कहानियाँ लेके जाती थी उनके पीछे पीछे मैं जाती थी। एक कहानी सुनी, किसी ने दूसरी कहानी बताई, तो ये करते कराते, जैसे किशोर आपा ने बात की है बच्चों की, तो एक कहानी, एक इतिहास, एक हिस्ट्री जो मेरे सामने आई वो कि छोटे बच्चों के ऊपर क्या गुजरी थी उस वक्त, कि अगर 6-7 साल, 10-11 साल का बच्चा है जिसने इतना वायलेंस देखा, तो वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उनके दिमाग पे क्या हुआ होगा, कैसे आगे बढ़े होंगे। और साथ साथ में औरतों की हिस्ट्री, कि कितनी सारी औरतें अगवा की गई, कितनी सारी औरतों की ज़बरदस्ती शादियां हुई, उनके इतिहास को क्या हुआ, उनकी लाइफ को क्या हुआ बाद में। और इसी तरह करते कराते इंडिया की साइड पे मैं एक दिन
एक औरत से बात कर रही थी जो कि बटाला के एक छोटा सा पिंड है दीनानगर, उसमें एक कॉलेज में झाड़ू पोंछे का काम करती थी। उसका नाम है माया रानी। तो मैंने माया रानी से मैं पूछ रही थी तो उसने मुझे ये कहा कि हमारा जो छोटा सा गांव था वो बिल्कुल बॉर्डर पे पड़ रहा था और ये पता नहीं चला कि वो हिंदुस्तान जाएगा या पाकिस्तान जाएगा। और जब ये अफवाह फैलती थी कि वो पाकिस्तान जाएगा तो सारे हिंदू अपने घर छोड़ के भाग जाते थे, और जब वो अफवाह फैलती थी कि हिंदुस्तान जाएगा तो सारे मुसलमान अपना घर छोड़ के भाग जाते थे। और माया रानी और उसकी सहेलियों ने सारे घरों में छलांगे मार मार के चोरी की और अपना दहेज सब कुछ वहाँ से इकट्ठा किया, जेवरात चोरी किए। और मैंने उससे पूछा कि आपको किसी ने मारा नहीं? तो वो मुझे कहने लगी कि नहीं, हमें क्यों मारेंगे, हम ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम दलित हैं, हम हरिजन हैं। तो ये बात भी मेरी समझ में आई और उससे मुझे ये लगा कि जो छोटे छोटे इतिहास हैं, जो छोटी छोटी हिस्ट्रियाँ हैं, जैसे कि पारसीज़ की, जैसे कि माइनॉरिटीज़ की, जैसे कि क्रिश्चियंस की। और अभी मैं असम से आ रही हूँ इंडिया में, और वहाँ पर काम चल रहा है ऑन द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, ऑन असम, ऑन त्रिपुरा, ऑन द बर्मा बॉर्डर एंड सो ऑन। सो बहुत सी चीज़ें हैं, इनको गिलास चाहिए। सॉरी, बहुत सी चीज़ें हैं देखने की। और अभी तो ये हमारे दोनों मुल्कों में शुरुआत हुई है, आगे बहुत काम करने को है। चले बहुत बहुत शुक्रिया उर्वशी। आपने बच्चों की बात की तो मेरी जो किताब है द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, उनमें 2.5 साल के बच्चों की भी कहानी है। और जब उनके बड़े भाई से मैंने बात की तो पता लगा कि बच्चे की जो मेमोरी है वो ज़्यादा शार्प है। तो जो ट्रॉमा है वो किस हद तक, किस एज पे आप पे अफेक्ट करता है, वो एक खुद अपनी जगह एक तहकीक का मौजू है। अच्छा, मेरा इस पैनल को अंग्रेज़ी में कंडक्ट करने की वजह एक तो थी कि हमारे साथ कम से कम हमारे एक साथी जो हैं पैनल पे सुधेंद्र कुलकर्णी, वो साउथ इंडिया से हैं। तो मेरा मतलब था कि हर एक को हम कैरी करें। तो यकीन है आप उर्दू या हिंदी हमारी लेवल बड़ी की तो अच्छी हिंदी बोलते हैं। अच्छा चले ठीक क्या है? है। कुलकर्णी जी अपने दौर के गांधीयन पीस और नॉन वायलेंस के बहुत बड़े चैंपियन हैं, और हम सब इनको बड़ी कदर की नज़र से इसलिए देखते हैं कि कश्मीर जो एक बहुत बड़ा मसला हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान है, उसका एक फ़ैसला, एक फार्मूला, एक फ्रेमवर्क जो है वो तैयार है कुछ काफ़ी देर से। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं खुर्शीद कसूरी साहब, उनकी जो किताब है नाइदर अ हॉक नॉर अ डव, वो जब बॉम्बे में लॉन्च हुई तो सुधेंद्र भाई जो थे ये उस पैनल पे थे। और बॉम्बे में मेरे ख्याल से जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं, गालिबन शिवसेना के लोग, उन्होंने वहाँ पे आके इनके चेहरे पे काला रंग लगा दिया। लेकिन ये उससे डरे नहीं, इन्होंने थोड़ी देर के बाद आके पूरा डिग्निटी के साथ उसी आलम में कंडक्ट किया। पार्टीशन अगर देखा जाए तो बिग बॉयज़ का एक पावर शेयरिंग फार्मूला, उस पर ना अग्री करने का रिज़ल्ट है। उसमें आवाम की राय, आवाम की जो अपनी पसंद थी, प्रेफरेंस थी, उसका कोई कहीं दखल नहीं हुआ। और इसके मुतल्लिक के पार्टीशन का इम्पैक्ट क्या होगा आने वाले वक्त पे हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे, इसके लिए मैं आपको एक कोट आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पहले कुलकर्णी जी से वो बात आप मुझे देखें, मैं कंडक्टर हूँ, लेट मी डू इट प्लीज। हाँ, मेरे जेहन में है कि उन्हें कहाँ पे मैंने इंट्रोड्यूस करना है। इन क्रॉसरोड्स शुजा नवाज हैज कोटेड द लेट जनरल याया खान ऑन द पार्टीशन ऑफ इंडिया and the British Indian Army.
He writes that Major General Muhammad Aga Yahya Khan, later President of Pakistan, General Muhammad Yahya Khan, said at the breakup party of the Staff College in Quetta to Colonel S.D. Verma, the Chief Instructor, please, sir, what are we celebrating? This should be a day of mourning. As a united country, we would have been strong and powerful nation. Now we will be fighting one another. और मैं समझता हूँ ये उस दौर की जो सबसे ज़्यादा प्रोफेटिक अंडरस्टैंडिंग है पार्टीशन की, वो याह्या खान की है, जिन्हें 1971 में खुद हिंदुस्तान के जंग लड़नी पड़ी। तो आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि उसका इफ़ेक्ट जो है दोनों मुल्कों के ऊपर, दोनों मुल्कों के अवाम के ऊपर, यहाँ के मुआशरे के ऊपर, यहाँ की सियासत के ऊपर कभी उसका जो क्लोजर नहीं नज़र आता। तो कुलकर्णी साहब उन अपना मुजाहिदों में से हैं जो इस फ्रंट पे पीस के लिए और हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती के लिए बहुत काम कर रहे हैं। तो अब शुक्रिया डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। आवाज़ आपकी नहीं, माइक नजदीक करें। मैं सबसे पहले आप ही की किताब का हवाला लेकर मेरी तकरीर शुरू करूंगा। पंजाब ब्लडीड, पार्टीशन्ड, क्लेंस्ड। जब दिसंबर महीने में मेरी ये किताब ऑगस्ट वॉइसेस ऑन इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश कॉन्फेडरेशन इसका लॉन्च हुआ बम्बई में, तो भारत के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर हमीद अंसारी साहब आए थे रिलीज़ करने के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक बहुत अच्छी किताब है पंजाब के पार्टीशन पर, कोई पाकिस्तानी स्कॉलर हैं, मैंने सुना है कि बहुत अच्छी है लेकिन मैंने पढ़ी नहीं है। तो मैंने कहा कि ये किताब है पंजाब ब्लडीड, पार्टीशन्ड एंड क्लेंस्ड। हाँ यही है, डॉक्टर इश्तियाक अहमद। तो मैंने बाद में उन्हें ये किताब भेजी एंड ही रोट बैक टू मी full of praise for this book. मैं पार्टीशन के समय जो बैरबैरिटी हुई, इसका सबसे बड़ा जो ब्लेम जाता है, जिम्मेदारी जाती है, वो ब्रिटिशों पर जाती है। लेकिन हम कोई कम नहीं थे। और मैं सादत मंटो की कुछ लाइन पढ़ना चाहता हूँ यहाँ। Why have human beings become so thirsty for human blood these days? Should we wash our hands of humanity? Have we lost faith in that thing called conscience? Whose blood was being shed with such heartlessness every day? Where would they burn or bury the bones from which the vultures had stripped off the flesh of religion? Vultures had stripped off the flesh of religion. Manto's lament that human beings in both countries were slaves of bigotry. Slaves of bigotry. Both Hindus, Muslims, Sikhs, we, at least some of them, not all, had become slaves of bigotry. Slaves of religious passions, slaves of animal instincts and barbarity. And he says that we have blood on our hands. So it's not only the British who were responsible, to some extent we also were responsible, and हमारी खुद की जिम्मेदारी हम समझ ले तो हम इस हिस्ट्री को बदल सकते हैं। तो पार्टीशन जो हुआ, इसका एक सबसे बड़ा कारण यह था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ट्रस्ट नहीं था। और दैट लैक ऑफ ट्रस्ट हैज समहाउ कंटिन्यूड, it has spilled over into lack of trust between India and Pakistan. तो आज हमें इतिहास की ओर, हिस्ट्री की ओर देखना है इस मकसद के साथ कि हम इस हिस्ट्री को कैसे बदलें।
यह हमारा मकसद होना चाहिए। और हिस्ट्री को बदलना है तो हिंदू और मुसलमानों के बीच ट्रस्ट पैदा करें, भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रस्ट पैदा करें। और इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि हमें ये वी हैव टू कन्विंस आवरसेल्व्स दैट इंडिया इज नॉट अ थ्रेट टू पाकिस्तान एंड इंडिया शुड बिहेव इन सच अ मैनर दैट पाकिस्तान इज बिलीव दैट इंडिया इज नॉट अ थ्रेट टू देयर सिक्योरिटी, देयर सर्वाइवल। और इसी तरह पाकिस्तान की भी ये जिम्मेदारी बनती है को इंडिया को ये एक persuade them to think that Pakistan is our friend, is our partner, is our brother, and behave in such a manner that we should not become, unfortunately the trend has started in India and I'm very worried कि भारत भी एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट बनते जा रहा है। ये बहुत खतरे की बात है। Neither Pakistan nor India should become national security states. We should become true democratic states, inclusive states, and include each other in our common idea. We should harmonize the idea of India with the idea of Pakistan, जिससे कि हम पार्टीशन को हमेशा के लिए एक हिस्ट्री का एक चैप्टर बना देंगे, which is never to be opened again. बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम हरभजन कौर शहनाज बेगम साहब की मैं चाहता हूँ स्टोरी बताना, लेकिन इससे पहले बिल्कुल इसी किस्म की एक और स्टोरी भी बताई जानी चाहिए। और वो ये है कि जब मैं पार्टीशन वाली किताब पे रिसर्च कर रहा था तो स्टॉकहोम में मुझे मिले एक चौधरी अब्दुल वाहिद, जिनकी बड़ी दर्दनाक कहानी थी। और वो रोपड़ डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पंजाब के रहने वाले थे। वो सारे गांव जो वहाँ पे हैं वो मुस्लिम गुजरों के थे। अक्टूबर में उन पे जब हमले हुए तो बेतहाशा लोग मारे गए। एक बच्ची थी 4 साल की और उसकी वालदा, उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ था, वो अलग हो गई। और जो वालदा है वो पाकिस्तान आ गई। वो बच्ची वहाँ ही लाशों में खड़ी थी तो एक औरत ने उस पर तरस किया और वहाँ एक रेडर जो थे जिन्होंने अटैक किया था उसके घर ले गए कि हम इसका क्या करें। तो उनको उस पर तरस आ गया और उन्होंने उस बच्ची को अपने घर में रख लिया। उसके बाद उनके बिजनेस बड़ी फ्लरिश की, उनकी औलाद नहीं थी, 2 बेटे हो गए। तो उसका नाम उन्होंने रख दिया नसीब कौर, जिसका मैंने तर्जुमा किया है द प्रिंसेस ऑफ डेस्टिनी। तो वाहिद चौधरी की स्टोरी कंफर्म करने के लिए मैं डंगोली उनके गांव गया, रोपड़ में। वहाँ से जब हम निकल रहे थे तो एक खासी उम्र के सिख थे। उन्होंने कहा बाऊजी ए नाल दे पिंड चले जाओ फूल खुर्द, उत्थे एक सिख औरत है जिहड़ी 47 इंच मुसलमान सी, ते उहदी भी गल तुसी जाके सुन लो। तो मैं उस गांव गया और उस औरत से मिला। वो खुद अब दादी थी, उनके बच्चे थे। एक पेजेंट जैसी फैमिली होती है, कोर्टयार्ड में कैटल और ये सारा कुछ। तो उसने अपनी पूरी स्टोरी बताई, लेकिन स्टोरी यहाँ पे बनती है कि उसकी वालदा पाकिस्तान में आ गई और उनकी फिर एक और शादी हो गई, उनकी औलाद थी, लेकिन उनको पता था कि उनकी बच्ची जो है वो ज़िंदा थी। तो वो हर साल ननकाना साहब जाती थी। वहाँ से जब सिख यात्री आते थे तो उनसे पूछती थी कि आप उस गांव के तो नहीं हैं। तो फिर एक दिन वही औरत जिसने उस बच्ची को ढूंढा था वो आई हुई थी। उसने कहा हाँ तुम्हारी बच्ची वहाँ पे है। फिर उनकी वालदा जो हैं वो गालिबन इंडियन एम्बेसी गई होंगी, उनको तरस आ गया। मुझे वो बताती हैं अपना नसीब कौर के एक दिन 1991 में किसी ने दरवाज़ा खड़काया। तो जब मैंने खोला तो एक चेहरा बड़ा बुज़ुर्ग जैसा और सफ़ेद शटल कॉक वाला जो है बुर्का पहना हुआ। तो उसने कहा कि मैं तेरी बीबी हाँ। तो उसने कहा कि मुझे पहचान लिया कि ये मेरी वालदा थी। तो दोनों एक 5 वक्त की नमाजी मुसलमान, एक अमृत छकी हुई
सिख यानी बैप्टाइज्ड सिख, दोनों का मिलाप हुआ। कुछ इस किस्म की कहानी हरभजन कौर शहनाज बेगम की है। इनका जन्म राजा संसी में हुआ, जो आजकल अमृतसर एयरपोर्ट वहाँ पे बना हुआ है, और 15-16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई सरदार हरबील सिंह से, लाहौर के थे। तो ये वो लाहौर आ गई। 47 के जब ये बलवा हुआ तो उन लोगों को वहाँ से भागना पड़ा। उस ट्रक में जितने मर्द थे उनको उतार के तो कत्ल कर दिया गया, और जवान लड़कियों को फिर बेच के कई हाथों में वो बिकी। आखिर में एक अफजल खान साहब हैं जिन्होंने इन्हें अपना साथी बनाया, और इनका ये कन्वर्ट हो गई और इनका नाम रखा गया शहनाज बेगम। ये लाहौर से ख़ानदान जो है कराची चला आया। कराची में उनका कोई फेशियल क्रीम का बिजनेस था। इनके 5 बच्चे हुए। सबसे छोटे जो हैं रिजवान यहाँ बैठे हुए। तो 1962 में गालिबन इंडिया पाकिस्तान के कुछ हालात बेहतर थे, तो इन्होंने कोशिश करके, क्योंकि वो वालदा को मिलना चाहती थी, वालिद को मिलना चाहती थी, बच्ची थी, जब शादी हो गई तो अपने मियाँ को लेके और 5 बच्चों को लेके ये लोग राजा संसी पहुँच गए। वहाँ पे इनके जो वालिद हैं, जो एक लैंडलॉर्ड थे, उन्होंने कहा बात सुनो, बेटी तो हमारी आ गई है, अफजल खान तुम अपने बच्चों को लेके तो पाकिस्तान चले जाओ। तो बड़ी इन्होंने मिन्नतें की, सारा कुछ। 2 साल के थे रिजवान, जिनको छोड़ते हुए ख़ास तौर पे इन्हें बहुत सदमा हुआ। लेकिन फिर अफजल खान को अपने बच्चों को लेके पाकिस्तान आना पड़ा। ये लोग कराची आ गए। फिर बाद में इन्हें बता दिया कि तुम्हारी वालदा जो है तो उनकी तो डेथ हो गई। 1969 में इनके वालिदैन ने इनकी शादी दूसरी दफ़ा कर दी सरदार हरबचन सिंह के साथ, जिनकी वाइफ की डेथ हो गई थी और एक बच्चा था उनका छोटा, जिसको माँ की ज़रूरत थी। तो रोमी सिंह जो है वो इनका बेटा बना। रोमी सिंह फिर जवान हुआ और बिजनेसमैन बना और अमेरिका में जाके सेटल हो गया। वहाँ पे उसने अपने वालिदैन को बुला लिया। हरभजन वो हर की ना सी जी उन्हों का सरदार होरां दा जेड़े इन्हां दे वालिद दा की ना सी, गुरबचन सिंह होरी। हाँ जी। तो उनकी वफात हो गई, लेकिन रोमी सिंह को पता लग गया कि इनके मुसलमान जो बच्चे हैं पाकिस्तान में, वे उनके लिए तड़पती हैं। तो मेरी पार्टीशन वाली पंजाब की जो किताब है उसमें एक स्टोरी नसीम हसन साहब की है, जो 2.5 साल के थे और उन्हें शिमला से अपने ख़ानदान के साथ लाहौर भागना पड़ा। क्योंकि मैं डेली टाइम्स में कॉलम लिखता हूँ तो मेरी दोस्ती नसीम से हो गई। बाद में मैंने कहा आप अपनी पूरी कहानी जो है वो लिखें, मैं अपनी किताब में छापूँगा। वही किताब छपने से पहले, चंद महीने पहले, उन्होंने कहा कि अगर आप इजाज़त दें तो यहाँ कम्युनिटी जो अखबार होते हैं उसमें मैं चाहता हूँ कि अपनी स्टोरी को भी अपलोड कर दूँ। तो मैंने कहा ठीक है। वो फिर रोमी सिंह ने पढ़ी और रोमी सिंह ने उसे कहा कि यार मेरी एक मदर हैं, स्टेप मदर हैं, जो तड़प रही हैं अपने बच्चों के लिए, तो आप कुछ मदद करें। तो नसीम ने कहा भाई मैं तो सिर्फ इश्तियाक को जानता हूँ, जो मेरी किताब में जिनमें स्टोरी भी थी और जो डेली टाइम्स में कॉलम लिखते हैं। तो 16 दिसंबर 2012 को मैंने लाहौर के डेली टाइम्स से एक स्टोरी लिखी, हेल्प अ मदर फाइंड हर चिल्ड्रन, जिसमें रोमी सिंह ने पूरी इनके फर्स्ट पर्सन में जो कहानी है जो मैंने बताई वो लिखी। लेकिन क्योंकि ये आर्टिकल अंग्रेज़ी में था और लाहौर में छपा था तो इस ख़ानदान तक नहीं पहुंच सका। इसी दौर में नसीम
हसन ने उनके कुछ वाकिफ़ थे तुफ़ैल उपल साहब, उनसे बात की तो तुफ़ैल उपल साहब खुद राजा संसी के थे और 1946 में जब इनकी पहली शादी हुई थी तो उस बारात में वो वहाँ पे ही टुक पार्ट इन दैट वेडिंग सेरेमनी। तो ये दोनों मिले और इन्होंने एक दूसरे को पहचान भी लिया। फिर तुफ़ैल उपल साहब ने मेरे आर्टिकल को अपने सन इन लॉ के ज़रिए जंग में उर्दू में छपवाया जो इस ख़ानदान ने पढ़ा। इसी दौरान मैं इंडिया में गया हुआ था इस किताब पे बात करने के लिए। तो 17 फरवरी को 2013 को जब मैंने वहाँ पे ईमेल खोली तो वहाँ पे दो बहुत ख़बरें थी मशहूर, बड़ी ख़बरें थी। एक तो OUP की तरफ से शहला नकवी, उन्होंने लिखा कि आपको मुबारक हो, आपकी किताब जो है द पंजाब ब्लडीड पार्टीशन एंड क्लेंस्ड, उसे कराची लिटरेचर फेस्टिवल में 2013 का बेस्ट नॉन फिक्शन बुक का अवार्ड मिला है। उसी में जमीला बेगम जो यहाँ बैठी हैं, उनकी जो बेटी हैं, उनका ईमेल था कि मैं उनकी बेटी हूँ, खुदा के लिए हमें हमारी मुलाकात करा दें। मैंने कहा देखें इसको 10 बजे हुए हैं। मैंने फिर कराची फ़ोन किया, बात की कि मेरी बात नसीम हसन इस पर सोए होंगे तो क्योंकि दुनिया गोल है तो चंद घंटे आप इसका इंतज़ार करें। 3:30 बजे वहाँ से नसीम हसन ने मुझे ईमेल किया। उन्होंने कहा यार ये तो एक मौजज़ा हो गया। बाय द इवनिंग द फैमिली हैड टॉक टू ईच अदर और उनकी बड़ी बेटी इत्तफाकन कनाडा में थी। उसी दिन वो फ्लाई करके बाल्टीमोर आ गई और अपनी वालदा से मिली। आजकल ये अपने बच्चों के पास हैं यहाँ पे, तो मैं समझता हूँ इनसे खुद इनके चंद तासुरात जो हैं वो सुने जाएं। क्यों जी? तुसी हुण जड़ा अपना कुछ कहना चाहो प्लीज़। मैंने आपको ही सब कुछ बता दिया है, अब मैं कुछ नहीं कहना चाहती। नहीं कहना चाहते हैं? चलो। सारा कुछ इन्होंने बता दिया था। नहीं वो सारा दस्या होया उन्होंने। हाँ तो उन्होंने क्या है कि सारा दस्या होया। ठीक है, कुछ भी नहीं तुझे कहना चाहते तो जी मेरे बच्चे को जो कुछ नहीं? कहना चलो चाहते ठीक। ठीक कमाल, आप ही को तो सब कुछ बता दिया था, अब मैं क्या अब मैं कुछ नहीं कह सकती। आपको सब कुछ बताया था ना, दस दिता सी सारा कुछ। हाँ जी। लेकिन हुण तुहाडा तासर की ये बच्चियां नाल मिल के हाँ, की तुसी फील करदे हो? मैं बच्चों नाल रह के खुश हाँ। बहुत खुश हो तुसी? हाँ ठीक। ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ हाँ जी, ਜਿਹੜੇ ਸਨ, हाँ जी। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਹੁਤ ਤੜਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। हाँ जी, ਹਾਂ मैं रहना चाहनी है इन्हों को। हाँ ठीक। तो अगर हो सके तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इजाज़त दिला दें इनको कि ये अपने बच्चों के पास रहें। इन्हें हर साल हर महीने 10,000 रुपया जो है ना जमा कराना पड़ता है। ठीक। और अगर ये इनको मिलवाने के लिए लेके जाना पड़े तो और ठीक है, बाद में कल करेंगे। हाँ जी। तो अब शायद वक्त थोड़ा सा है सवालों के लिए। क्यों जी, कैसे है? किसी ने सवाल करना हो तो प्लीज़ गो अहेड। हाँ जी फरमाएं। मैं बड़ी यानी आपकी किताब का तो बहुत तारीफ़ है, मैंने पूरी तफसील से पढ़ी है और उसमें जो चीज़ आपने लिखी है ग़ालिबन मेरे इल्म में नहीं और ग़ालिबन आप भी जानते हैं कि इस नौइयत की किताब हमारे मुल्क में शायद अभी तक छपी नहीं। और इस मामले को नकवी साहब ने एक बहुत अहम बात कही कि अपार्थाइड का मसला जो है वो एक अहम मसला था।
मैं उसको मुख्तलिफ तरह से देखता हूँ, मगर इस वक्त मैं एक और अहम बात पर, एक और अहम मसले पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जो एक ख़ास साजिश कह लें या कुछ कह लें उसे, कि एक रवैया अपनाया जाता है कि लेट द बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। ये साजिश है उन लोगों की कि मटी पाओ, ताकि वो लोग जो इसमें शामिल थे उनके पर्दे चाक ना हो सकें, आईना हम ना देख सकें। ये बहुत अहम मसला है। ये वही जिनका ज़िक्र आपने किया कि इनको भी एहसास नहीं था कि इनके वालिदैन किस मसले से गुजरे, और जब वो उसमें शामिल हुई तब पता चला कि ये कितना गंभीर मसला था जिस पे पर्दा डाल दिया गया। और हाँ, ये मेरा ख्याल से बड़ा तो। और एक बात ये कि जिस तरह से हम पे कर रहे हैं उसकी बहुत सारी मिसालें हैं। डॉक्टर एडी तासीर का वाक़या देखें कि उन्होंने मजहबी वाला और हम पेश करें तासीर साहब के साथ क्या हुआ, रिपरकशंस। ये और कुछ लोग कोई सवाल? My question is to Dr. Numan Naqvi. Sir, can you please explain what you meant by the very first statement that the violence was due to the apartheid nature of the British colonial state? Because that's a very vague statement, I think, because if you follow David Gilmartin, the violence of partition was due to the disjuncture produced because the idea of Pakistan was not linked to the territory of Pakistan, and following Aisha Jalal, the person responsible for keeping the idea of Pakistan vague was Mr. Jinnah. So what do you mean when you say that, you know, So what I meant to point out first of all, so the polity of the subcontinent formed over the course of these 150 odd years, yes, of colonial rule. Yeah. Sir, I am Dr. Tariq Aziz. भैया मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ. हाँ. So मैं ये point out करना चाह रहा था क्योंकि इसके बारे में discussion नहीं होता, ये समझा नहीं जाता कि जो colonial state थी, it was not like other pre-modern states. Just like the nation state is not like pre-modern states, the colonial state, which was an apartheid state, was not like other states. और apartheid जो है, आप उसको कहीं देख लें, this includes South Asia, does not just make a distinction, a racial distinction. By the way, it is also not understood that race, specifically race, is a modern way of making distinctions between people. उसका एक नतीजा हमारे यहाँ क्या हुआ है कि जो मज़हब की बात हो रही है, हमारे यहाँ अब मज़हब जो है वो मज़हब नहीं रहा, वो एक नस्ली चीज़ बन गई है. It's become a racial thing. तो वो रब्बुल आलमीन नहीं रहा खुदा, वो रब्बुल पाकिस्तानीन हो गया है. Yes, this racialization of religion also was precisely a result of colonial rule. So ये नस्ली जो फर्क पैदा हुआ है ना आपकी पॉलिटी के अंदर, हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान फर्क जो है उसको महज मजहबी फर्क नहीं समझा जाता. आप देखें unconsciously or subconsciously or pretty much on the surface a lot of the times it is a racial distinction. Thank you, sir. यानी ये एक ethnic category है ना, race I or want to religion use- playing the same role Yeah. of two groups which cannot coexist. That's the whole It's argument. connected to this idea of Aryans, Indo-Europeans and Semites on the other. I am Dr. Tariq Aziz. मेरा क्वेश्चन यह है कि 40 का जो रेजोल्यूशन था वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था, वो हिंदुस्तान के लिए भी था. वो था कि इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट्स विल मेक पाकिस्तान एंड विल मेक इंडिया. जब तक हम ये फार्मूला नहीं होगा, स्टेट सॉवरेन नहीं होगी, जब उनकी डिफेंस अपना हो, जब उनका फाइनेंस अपना होगा, तब वो आज़ाद होती है. तो सारे हिंदुस्तान पाकिस्तान की स्टेट्स को उस 40 की रेजोल्यूशन को अपनाना होगा. थैंक यू. हाँ जी, उधर से हेलो, माय नेम इज़ सारंग खान. पहले तो मैं अपने इंडियन मेहमानों को वेलकम करता हूँ उन्हीं के मुल्क में. एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि हम इंडिया पाकिस्तान जो आज से मतलब हज़ारों साल पहले साथ रहते थे, लेकिन इस 70 साल की हिस्ट्री ने हमारी पुरानी सारी हिस्ट्री को ख़त्म कर दी है. तो क्या हम ऐसा क्या स्टेप लेंगे जो हमारे बच्चों, जो मतलब स्कूल्स में जो सिलेबस है, जो हम एक दूसरे को मतलब गालियाँ देते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में कहते हैं,
हम ऐसा आगे क्या स्टेप लेंगे जो ये हमारी 70 साल की हिस्ट्री को एक साइड करके हमारी दोबारा पुरानी वाली रिलेशन को बहाल करे? थैंक यू। सुदेंद्र साहब। मेरा जवाब आपके सवाल के लिए ये है, कोई आसान चीज़ तो नहीं है, लेकिन हमारे दोनों मुल्कों में हमें ये बताया जाता है कि पार्टीशन की हिस्ट्री और पार्टीशन के बाद की हिस्ट्री दो अलहदा हिस्ट्रियाँ हैं। लेकिन जैसे आपको हरभजन कौर जी की कहानी ने बताया, दे आर नॉट टू सेपरेट हिस्ट्रीज। टिल 47 वी हैड अ शेयर्ड हिस्ट्री, दैट हिस्ट्री कंटिन्यूज टू बी शेयर्ड। और अगर हम लोग कुछ अपनी सरकारों पे दबाव डालें कि कम से कम थोड़ा सा तो खुलासा हो बिटवीन गोइंग एंड कमिंग, मीटिंग, टॉकिंग, बिकॉज आप देखते हैं कि जब पाकिस्तानी हिंदुस्तान में आते हैं या जब हिंदुस्तानी पाकिस्तान में आते हैं तो इतने प्यार से वेलकम किया जाता है, इतनी दोस्ती होती है, दैट इट सीम्स क्रेजी टू कीप अप द बैटल। दुनिया में सिर्फ हमारे दो मुल्क हैं और नॉर्थ एंड साउथ कोरिया हैं जो आज तक बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, आज तक वाकई कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं, मुझे ये लगता है, एंड दैट इज़ रियली ट्रैजिक। सो ये मुझे लगता है कि वाई कैन वी नॉट रिकग्नाइज, पार्टीशन हो गई, दो मुल्क बन गए, दो मुल्कों के तीन मुल्क बन गए, क्या हम एक दूसरे के साथ अमन चैन से नहीं रह सकते? क्योंकि ये जो फॉर्मूला थी कि अगर हिंदुओं और मुसलमानों को अलग कर दो तो वो आपस में झगड़ेंगे नहीं, उसका तो आपको सब दिख ही रहा है कि हिंदुस्तान में हम एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, यहाँ पे आप एक दूसरे से झगड़ रहे हो, और वो हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, वो अपना ही झगड़ा है बीच में। So it's not as if you separate people and put like with like and everything will be fine. It will not. So we have to work to make it fine and make it normal. तो हमें करना ही पड़ेगा। किशोर नाई साहिबा, उसके बाद आप बोलिए। असल में जो हम पार्टीशन के हवाले से बात करते हैं, मेरे अब्बा को जब रिहाई मिली तो उस दौरान भी जो उनके हमारे ब्राह्मण दोस्त थे वो हमारी मदद करते रहे, लुक आफ्टर करते रहे, और अब्बा आए तो वो ट्रेन से आए, और उस ज़माने में जितनी ट्रेनें आती थी उस ज़माने में लड़कियाँ अगवा कर ली जाती थी, लड़कों को कत्ल कर दिया जाता था। तो हमें आने के लिए ट्रेन से अब्बा के दोस्तों ने रोका, और उन्होंने रोकने के अलावा अम्मा को कहा अपना जेवर बचाओ, बेचो अगर बच्चियों की इज्जत चाहती हो। और उन्होंने जेवर बेचा, और उस ज़माने में डिकोटा जहाज़ चलता था छोटा, उसमें हम दिल्ली से लाहौर आए। तो दोस्तियाँ जो थी उस ज़माने की पुरानी, ये नहीं हर जगह दुश्मनी थी, बहुत जगह दोस्तियाँ भी थी और लुक आफ्टर भी था। मेरे पूरा ख़ानदान दिल्ली में था, फूफी का पूरा कत्ल कर दिया गया था। जब अब्बा के दोस्तों ने पता चला, उनको कहा एक मेरा भाई 3 दिन से पड़ा था, बेहोश जिंदा था, उसको उन्होंने उठाया और अस्पताल में दाखिल किया। तो हमें वो स्टोरीज़ भी लानी चाहिए जहाँ मोहब्बतें भी थी और जहाँ पे एक दूसरे का एहतराम भी था। इसके साथ साथ मुझे, मेरी नॉलेज अपनी में है, 40 औरतें मैंने अपने आप देखी हैं, आपने शायद ना गए हों। दारुल अमान एक चौबुर्जी के पास था औरतों का, उसमें वो सब औरतें थीं जो अगर कौर थी तो वहाँ शहनाज बन के आ गई थी, लेकिन उनकी फैमिलीज़ ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया था, और बेजारो मददगार वो औरतें वहाँ रही थी। और उनमें से 2 औरतें ऐसी थीं जिनको मैं कई साल तक बुलाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो बोल के नहीं थी। उर्वशी ने भी उसका बहुत जिक्र किया अपने रिसर्च में। सुरेंद्र, आप बोलना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी हिस्ट्री जो है, जो हमें जोड़ती है, वो हज़ारों साल पुरानी है। और 1947 में 2 अलग मुल्क हुए, हम ये समझे कि ये दोनों पॉलिटिकली अलग है, सोशली अलग नहीं है, हम कल्चरली अलग नहीं है। तो आज ये ज़रूरी है कि while remaining 2 separate sovereign equal independent nations, we make the social border irrelevant.
और इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम कश्मीर के मसले को हम सॉल्व करें जल्द से जल्द, क्योंकि इस सेशन का जो टाइटल है कि पार्टीशन ड्राइंग बॉर्डर्स इन ब्लड। आज भी कश्मीर में बॉर्डर पे ब्लडशेड हो रही है। ये तो जो अपना कसूरी प्लान है, इट्स अ वेरी वर्केबल सॉर्ट ऑफ। So therefore, we have to find a solution to the Kashmir issue. Kashmir belongs to Kashmiris, Kashmir belongs to Pakistanis, Kashmir belongs to Indians. So let us think of an innovative solution which makes Kashmir a bridge and not a barrier between India and Pakistan. Very right. इस पार्टीशन का और शहनाज बेगम का उनके बच्चों पे क्या इफ़ेक्ट हुआ, आखिर में रिजवान साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी माइक देखें, कनेक्ट कर ली। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे प्रोफेसर साहब, इन्होंने हमारी स्टोरी के तहत एक जो भी किताब लिखी, वो किताब आगे बढ़ी तो उसके बाद रूमी अम्मी का बेटा जो है हमारा सुतेला भाई, उन्होंने ये सब मज़हब को एक साइड में रखते हुए उन्होंने ये सारे हम लोगों को मिलवाया। उन्होंने उनकी मेहरबानी, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि देखो मज़हब को आप एक साइड में रखना, तो मैं एक इंसान हूँ, इंसानियत के नाते मैं ये अम्मी के बच्चों को आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊँगा। ये रोमी सिंह अमेरिका में होते हैं। तो ये सबसे बड़ा पहला किरदार तो इनका है, इश्तियाक साहब का। इन्होंने जो किताब लिखी तो वो वहाँ तक पहुँची, तो उन्होंने फिर हमसे मिलवाया। भाई बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर जब तक ऐसे लोग इंसानियत है तो ज़रूर इंशाल्लाह एक दूसरे से बिछड़े हुए मिलेंगे। थैंक यू। अभी वक्त है और सवालों के लिए एक सवाल। अच्छा चले। इश्तियाक साहब, हाँ जी। फसादात तो जो हुए सो हुए, तारीख का हिस्सा बन गए। मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया, और मैं पैनल की राय पूछना चाहूँगी, उन्होंने इस पर रिसर्च की है कि नहीं, कि जो लड़कियाँ गायब हो गई थीं और वापस हुई, तो उनके अपने ख़ानदान ने, चाहे हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो, उन्होंने अपने ख़ानदान वालों ने उनको लेने से क्यों इनकार कर दिया? ये पॉलिटिशियंस की प्रॉब्लम नहीं है, ये इनफरादी ख़ानदान की प्रॉब्लम है। क्या वो थिंकिंग आज तक बदली है कि नहीं बदली है? मेरे ख्याल से तो कतई नहीं बदली। ये सोच जो है कि औरत हमारी पोजेशन होती है, चैटल, और अब अगर दुश्मन के हाथ में चली गई है तो शी हैज़ बीन डिफाइल्ड। ये सोच ले कि दोनों तरफ से लोग औरतों को एक कमोडिटी के तौर पे ट्रीट करते हैं। और अगर आपने करतार सिंह देखी है, मेरे ख्याल से पार्टीशन पे सबसे बड़ी फिल्म पाकिस्तान में बनी थी। उसमें जब लड़की वापस आती है तो उसे प्रूव करना पड़ता है कि वाकई मुझे साथ कोई ऐसा नहीं किया गया। और फिर उसकी शादी में हिंदुस्तान से जो उनके दोस्त हैं, मामा एक हिंदू, वो शादी का जोड़ा भेजते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कबूल कर लिया। लेकिन मेरे से बेहतर उर्वशी बताएंगी कि इसका एक मजहबी पहलू भी है। आप बताएं। असल में मेरे ख्याल हिंदुस्तान और पाकिस्तान में काफ़ी इसमें फ़र्क था और कुछ सिमिलैरिटीज़ भी थी, जहाँ तक मेरी समझ है। क्योंकि हिंदुओं में ये छुआछूत का काफ़ी होता है, कास्ट का काफ़ी होता है। तो जो औरत दूसरे मज़हब के आदमी के साथ रह के फिर वापस आई, और काफ़ी बार ज़बरदस्ती उनको वापस लाया गया, क्योंकि हमारे दोनों मुल्क की सरकारों ने ये तय कर लिया था कि एक दूसरे के इलाकों में जाके उन औरतों को ढूंढ निकालेंगे और उनको अपने घरों में वापस ले आएंगे। और घरों को उन्होंने ऐसे समझा था कि हिंदू औरत को इंडिया लाना है, मुसलमान औरत को पाकिस्तान भेजना है, चाहे वो पहले कहीं भी रहती हूँ। तो जब हिंदू औरतों को वापस लाया गया, क्योंकि मैं इंडिया की बात कर सकती हूँ, पाकिस्तान के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है, तो वहाँ पर ये था कि बहुत से फैमिलीज़ ने मना कर दिया कि वो औरतों को वापस नहीं लेंगे, क्योंकि उनको ये लगता था कि दूसरे मज़हब के आदमी के साथ रहकर
वो औरत किसी न किसी तरह से पोल्यूटेड हो गई है, अछूत हो गई है और उसको घर में वापस शामिल नहीं किया जा सकता। लेकिन कई फैमिलीज़ ने औरतों को वापस ले भी लिया था, कुछ सेरेमनीज़ करके कि उनको प्योरीफाई करके, जैसे शुद्धि वगैरह करके। लेकिन असल में इसकी जो सबसे बुरा बर्ताव हुआ था वो बच्चों पे हुआ था। बच्चे, दोज चिल्ड्रन हु वर बॉर्न, और जो पैदा भी नहीं हुए थे, जो औरत की कोख में थे, क्योंकि बच्चे की नस्ल में आप कैसे कह सकते हैं कि कहाँ पे उसका हिंदू खून है और कहाँ पे उसका मुसलमान खून है। तो औरत को चाहे आप प्योरीफाई करके वापस ले सकते हैं, वो बच्चों को लिया नहीं गया था। और अगर हम ये स्टडी करते हैं, हमें दिखता है कि बहुत से यतीम खानों में खूब सारे बच्चे भर्ती हुए थे उस टाइम पे। बहुत सी औरतों की अबॉर्शन की गई थी। इंडिया में तो ऑफिशियली उस वक्त अबॉर्शन इलीगल थी, लेकिन बड़े बड़े अस्पतालों में ये किया गया था। यहाँ पर जहाँ तक मेरी समझ है, कुछ हद तक ये फैमिलीज़ ने मना किया था औरतों को वापस लेने से, लेकिन काफ़ी हद तक ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन ने काफ़ी काम किया था औरतों के साथ और उनकी शादियां करवाई थी और उनको सेटल करवाया था। तो जहाँ तक मेरी समझ है, इस तरफ वो समस्या इतनी बड़ी नहीं थी। बट आई कुड बी रॉन्ग अबाउट दैट बिकॉज आई डोंट नो इनफ अबाउट द पाकिस्तान साइड। आई थिंक यू आर राइट। इस्लाम में वापस कबूल करना आसान है। वहाँ पे लेकिन तो फिर भी बहुत से खानदान ऐसे थे जिन्होंने उन बच्चियों को कबूल नहीं किया था और वो भी आपने वो बताया। आ रही हैं। द टाइम इज़ अप। तो थैंक यू वेरी मच फॉर। नहीं, अब एक सवाल का टाइम नहीं है, अब टाइम नहीं है, बाद में आप बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Ladies and gentlemen, our next session in this room is Ilaqai Qaum or Shanakht. Speakers are Nurul Huda Shah, Munir Ahmed Badini, Masood Lohar, and moderator is Atiya Dawood. Thank you.